electric potential due to a system of charges. All right. So we can write here electric potential due to a system of charges, due to a system of charges. ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। आप सोचोगे जब आप ऑनलाइन क्लासेज छोड़कर दोबारा से अपने ऑफलाइन मोड में आओगे तो ये सब आपको रिपीट किया जाएगा। ये आपके PT1 एग्जाम में आने वाला है, सो इसको ध्यान से करेंगे और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में नोट भी करते चलेंगे। ऑलराइट, देखिए अब यहाँ पर बात हम करेंगे अ सिस्टम ऑफ चार्जेज। इट मीन्स अ सिस्टम विच हैव मोर देन 2 और 3 charges, more than 2 charges. So we can draw a system and find the electric potential at point P due to a system of charges. So there will be a system of 3 charges, 4 charges, or we can say n charges. Suppose there are 3 charges, या there are n charges, Q1, Q2, Q3 and Qn. There are n charges in any system, and this is a point P where we have to find electric potential due to all charges, and for this value is R1, distance from this charge to point P, that is R1, and from this that is R2, from this that is R3, and from that point that will be Rn. ऑल राइट, सपोज हमारे पास किसी सिस्टम में n चार्जेज हैं, ठीक है, और इन n चार्जेज की वजह से P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो Q1 चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस को R1 कंसीडर कर लिया, यहाँ से इस डिस्टेंस को हमने R2 कंसीडर कर लिया, यहाँ से इस डिस्टेंस को R3, और Qn से हमने इस डिस्टेंस को Rn कंसीडर कर लिया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, एनी डाउट टिल हियर? नो। Now, due to this charge, due to charge Q1, what is the potential at point P? Due to charge Q1, what will be the potential at point P? So we can write here VQ1, potential due to Q1. Potential due to Q1 will be K Q1 divided by R1. All right, potential due to Q1 at point P, so here we can write K Q1 upon R1. Now potential at P due to Q2, so we can write here K Q2 divided by R2. Now potential at point P due to Q3, so we can write V Q3 equal to K Q3 divided by R3. Now potential due to charge Qn at point P, so we can write here like this, VQn equal to K Qn divided by Rn. All right, these are the potentials at point P due to different charges. Now potential is a scalar quantity, so we add them all the quantities or all the potentials like this, V net equal to V Q1 plus V Q2 plus V Q3 plus ... V Qn. All right. Now what is the value of V Q1? In all the values K are common, K is common, so we can write here K and Q1 divided by R1 plus Q2 divided by R2 plus Q3 divided by R3 plus ... Qn divided by Rn. Any doubt? No. So now we move further, that here we can write a general expression. Here we can write a general expression. So general expression will be K
Now we can write it in the form of summation also. Note down this point. Can I erase this image? Now we can write here V naught from this V net equal to K summation I equal to from 1 to n, summation I equal to 1 to n, that will be Qi upon Ri, Qi upon Ri. This will be the final answer or final expression. So we can say that V net equal to K summation I equal to 1 to n Qi upon Ri. If we expand this term, then we will get this result. All right, note down, note this point. Done? Can I erase it? Now we will move another topic, that is electric potential or electric field as a potential gradient. Electric field as a potential gradient. Note down, very important. Electric field as potential gradient. Electric field as potential gradient. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट मीन्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन फाइंड करना है, और वो रिलेशन मैं आपको बताता हूं पहले क्या आता है, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dl, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dl। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होगा हमेशा। माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस रिलेशन को हमें ड्राइव करना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको ड्राइव करते हैं। देखिए किस तरीके से, सपोज एक हमारे पास सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज को हमने बोल दिया Q। इस सोर्स चार्ज से कुछ डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है। ठीक है, एक पॉइंट P है और इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। इस पॉइंट पर क्या रखा हुआ है, कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। ठीक है, अब इस टेस्ट चार्ज को हम इधर की तरफ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इधर की तरफ लेकर आए तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगा, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर आ रहे हैं, तो ये जो फोर्स होगा F इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस QE। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस QE। दोबारा सुनिए, एक सोर्स चार्ज है हमारे पास, सोर्स चार्ज से कुछ डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और इससे एक हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dl, या इसको हमने इधर की तरफ शिफ्ट किया एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के साथ dl के साथ। ऑलराइट, अब इस छोटे से dl के साथ जब मैंने इसको शिफ्ट किया तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ होगा वो छोटा सा वर्क डन हुआ होगा, दैट इज dw। ऑलराइट, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन। ऑलराइट, नाउ dw we can write here, we know that dw equal to f dot dl। f dot dl, यहां पर f क्या है, ये
छोटे से फोर्स की बात हो रही है, ठीक है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बात हो रही है, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट का जो ड्यूरेशन होगा वो भी बहुत छोटा होगा। उस छोटे से ड्यूरेशन में फोर्स हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नाउ अब ये वर्क डन हमने कहां से कहां किया, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा P था, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा कुछ भी कंसीडर कर लें हम A, ठीक है, तो ये वर्क डन हमने कहां से कहां किया, P टू A। ये वर्क डन बच्चों कहां से कहां तक हुआ, P टू A। सो वी कैन राइट हियर dw P टू A इक्वल टू क्या है, फोर्स की वैल्यू माइनस QE डॉट DL, माइनस QE डॉट DL। क्लियर? नाउ we know that from electric potential Vp minus, or we can say Va minus Vp इक्वल टू WPA डिवाइड बाई Q नॉट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। Va इस पॉइंट का पोटेंशियल है और Vp इस पॉइंट का पोटेंशियल, दैट डिवाइड बाई WPA डिवाइड बाई Q नॉट। यहाँ का पोटेंशियल सपोज हमने कैलकुलेट कर लिया, या यहाँ का पोटेंशियल हमने एज्यूम कर लिया V, और यहाँ का पोटेंशियल मैंने एज्यूम किया पॉइंट A का V प्लस DV। ठीक है, थोड़ी सी डिस्टेंस है DL, ठीक है, तो जो पोटेंशियल में इंक्रीमेंट आया होगा भाई यहाँ की तरफ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम इस पॉइंट से दूर जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो पोटेंशियल एज्यूम किया वो थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट इज V प्लस DV, एंड यहाँ का जो पोटेंशियल है वो है हमारा V। ऑलराइट, नाउ वी कैन राइट हियर व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A, potential at point A, so we can write here V plus dV. What is the potential at point B? That is V equal to W PA divided by Q naught. All right, this term will cancel out, so dV equal to W PA divided by Q naught. So we can write here WPA equal to dV into Q naught. This is equation number 2 and this is equation number 1 from 1 and 2। ठीक है, दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा वर्क डन क्या है, ये भी P2A है, ये भी वर्क डन हमारा क्या है, P2A। ये फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ये फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। सो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को बराबर रख दूं तो फाइनली वी विल गेट फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 dV डॉट Q नॉट इक्वल टू माइनस QE डॉट DL। ऑलराइट, यहां पर भी हम इसको टेस्ट चार्ज लिख सकते हैं Q नॉट। ठीक है, टेस्ट चार्ज की ही बात हो रही है, तो यहां से Q नॉट और Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड फाइनली वी विल गेट E इक्वल टू माइनस DV ओवर DL। E इक्वल टू माइनस DV ओवर DL। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस टर्म को हम बोलते हैं, ये जो टर्म है ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑलराइट, सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज होगा। ठीक है, देखिए यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर? नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। And note down some numericals. Can I erase it?
Write down a numerical. From the point of observation, electric potential or electric field at a point, electric field equal to 32 Newton per Coulomb and electric potential at point P, say P 16 जूल पर कूलम. ठीक है, कोई पॉइंट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन का, उस पॉइंट से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 32 न्यूटन पर कूलम और जो पोटेंशियल है वो है 16 जूल पर कूलम. ऑलराइट, तो आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट से फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड डिस्टेंस r एंड q फ्रॉम द पॉइंट of observation to that point. All right, दोबारा सुनिए इसको, न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे. एक पॉइंट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मैं यहां पे बना देता हूं, कोई पॉइंट है P, ठीक है, और यहां पर हमारे पास कोई पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, कोई पॉइंट है कहीं से कोई ऑब्जर्व किया जा रहा है. ठीक है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 32 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, पोटेंशियल है 16 जूल पर कूलम. ठीक, तो इस पॉइंट से जो P पॉइंट की डिस्टेंस होगी, एक तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है R, ठीक है, और यहां पर जो चार्ज रखा हुआ होगा, ठीक है, यहां पर जो चार्ज रखा हुआ होगा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है. ठीक है, यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स, दैट इज R एंड दैट इज Q. वीडियो पॉज करिए, एक बार इसको अपने आप से ट्राई करेंगे. ठीक है, चलिए करें इसका सॉल्यूशन. चलो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, के पी बाई आर. ठीक है, ये दोनों चीजें आपने पढ़ी हैं. क्या क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के पी बाई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के पी बाई आर स्क्वायर. ठीक, ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है हमें 32 इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. ठीक, और ये कितने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16 इक्वल टू के पी बाई आर. ठीक है, के पी बाई आर. क्लियर. नाउ दिस विल बी इक्वेशन 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन 2. इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग सिंपल करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए. के क्यू आएगा यहां पर, के क्यू बाई आर. ठीक है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर. ऑलराइट, नाउ दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए. फाइनली वी विल गेट 32 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाई के क्यू बाई आर. सो आर विल बी गो अपसाइड. थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे. 32 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू के क्यू इंटू आर डिवाइड बाई के क्यू इंटू आर स्क्वायर. ऑलराइट, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा. फाइनली वी गेट 32 अपॉन 16 इक्वल टू 1 बाई आर. सो आर इक्वल टू 16 बाई 32, 1 बाई 2. सो आर विल बी 0.5 मीटर. R will be 0.5 meter. All right.
Now we have to find the value of key Q. You can put the value of this R equal to 0.5 from here to in this equation. So finally we get V equal to K Q divided by, what is the value of R? 0.5. So what is the answer? 16 equal to KQ by 0.5. Now what is the value of electric potential? 16 into 0.5 equal to 9 into 10 to the power 9 into Q. So finally we get 8 divided by 9 into 10 to the power 9 equal to Q. So 8 by 9 into 10 to the power minus 9 equal to Q. This will be the answer. This will be the final answer. All right, note down it. Done. Write down another numerical. Note down another numerical. It is your homework numerical. The value of V x, y, z equal to, the value of V is 6xy minus y, 6xy minus y plus 2yz plus 2yz. Find electric field, find electric field at point, find electric field at point 110. All right students, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करेंगे और इसका सॉल्यूशन हम कल की वीडियो में देखेंगे. ऑल राइट, नोट डाउन इट. होमवर्क V दिया हुआ है आपको, V दिया हुआ है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किस पॉइंट पर? 1, 1 एंड 0. ऑल राइट, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे.